Good morning, students. This is Rohit sir again here, and today we'll be going through the question and answers of chapter 1, that is crop production and management. Already the lesson was explained to you, but today I told you have to take down all the notes as well as try the question and answers. But whatever you have done, okay, just check your answers. If they are correct, very good, excellent. But if anywhere the mistake has occurred, so just correct your answers. Okay, the question 1 is just fill in the blank, select the correct word from the following list and fill in the blanks. Actually the words are given to you: float, water, crop, nutrients and preparation. Float मतलब पानी के ऊपर तैरना, water means पानी, crop means फसल, nutrients जो पोषण तत्व, preparation बनाना, कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो प्रिपेयर करते हैं. So चलो फर्स्ट वन, the same kind of plants grown and cultivated on a large scale at a place is called. जो सेम काइंड ऑफ प्लांट्स हैं जैसे वीट है, राइस है, सबको ग्रो करके एक बहुत बड़ी ज़मीन पे ग्रो करने को क्या कहा जाता है? उसे हम लोग क्रॉप कहते हैं. क्रॉप की डेफिनेशन है, रिमेंबर, इज कॉल्ड क्रॉप. द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ द सॉइल. तो पहला स्टेप क्या होता है? फसल उगाने के पहले सॉइल को प्रिपेयर करना होता है, बनाना पड़ता है. तो इज प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल. डैमेज सीड्स वो डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर. अच्छे सीड और बुरे सीड, हमने पहले भी पढ़ा था, अच्छे सीड पानी में ऊपर नहीं तैरेंगे, वो डूबेंगे, और जो डैमेज सीड होंगे वो पानी के ऊपर आ जाएंगे. सो डैमेज सीड्स वुड फ्लोट ऑन टॉप ऑफ वाटर. फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट लाइट, सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल. तो मिट्टी से क्या क्या चाहिए? सनलाइट तो चाहिए, मिट्टी से हमें पोषण तत्व भी चाहिए एज वेल एज पानी भी चाहिए. सो फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप sufficient sunlight and water and nutrients from the soil are essential. Now in the next question we are going to see the match the following. Okay, match items in column A with those in column B. So जितने भी A में दिए हुए हैं उसे आपको B के साथ मैच करना है. ठीक है. सो A में दिया खरीफ क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स, केमिकल फर्टिलाइजर एंड ऑर्गेनिक मैन्योर. बी में दिया हुआ है फूड फॉर कैटल, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट. वीट, ग्राम, पी, पैडी एंड मेज. सो पहला है खरीफ क्रॉप. खरीफ क्रॉप में सीज़न तो कोई दी नहीं है, ठीक है, तो आपको जस्ट वो एग्जांपल्स दिए हुए हैं. पैडी एंड मेज खरीफ क्रॉप के एग्जांपल है, तो वो आगे आएगा. राबी क्रॉप के एग्जांपल्स हैं वीट, ग्राम एंड पी, वो आगे आएगा क्योंकि सीज़न नहीं है. अक्टूबर टू मार्च ये सब टॉक नहीं किया गया है. केमिकल फर्टिलाइज़र, जो खाद्य पदार्थ केमिकल से बनाए जाते हैं, वो है यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट एंड ऑर्गेनिक मैन्योर. एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट. सो नोट इट डाउन अगेन. So lastly it was organic manure, which is made from animal excreta, cow dung, urine and plant waste. Now the question 3 is give 2 examples of each. We have to give just 2 examples, but you can write as many as you want. Basically if it is 2 then you can write 5 examples. Kharif crop I have already given you paddy, maize, soybean, groundnut, cotton etc. तो ये सारे इसके examples हैं. राबी क्रॉप में वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एक्सेट्रा. सो more than 2 you have to write, at least 3 you note it down. Now in question 4 they are asking you to write a paragraph in your own words on each of the following. First of all it is a preparation of sky. So we have already studied about preparation of soil, but what we will be writing? The preparation of soil is the first step before growing a crop. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. उस दिन भी कहा था सॉइल अगर सख्त होगी तो उसमें हम लोग बीज बोएंगे नहीं सकते एंड फर्टिलाइज़र भी मिक्स नहीं कर सकते. सो इसीलिए सबसे पहले उसे लूजन करना है. दिस अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल and loosened soil helps in growth of earthworms and microbes which are friend of the farmer and add humus to it. Also, turning and loosening of soil brings the nutrient rich crop soil to the top so that plants can use these nutrients. सो टर्निंग करने से मतलब हम लोग जब उसे लूसन अप करते हैं तो मिट्टी की अलट पलट होती है, तो उससे क्या है, नीचली सॉइल जो है ऊपर की तरफ आ जाती है, तो क्या है, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल
पौधों को मिल सके, इसीलिए फर्स्ट स्टेप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, it is B, sowing. Okay, now sowing is the most important part of crop production. Before sowing, good quality seeds are selected. Good quality seeds are clean and healthy seeds of good variety. Seeds can be sown by seed drill or manually. ये हमने देखा ही था, sowing मतलब सीड को बोना। तो ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मिट्टी होगी तो पेड़ पौधे तो ऐसे नहीं लगेंगे। तो हमें जो भी फसल उगानी है उसके लिए हमें बीज चाहिए। उसके लिए हमें बीज जो है अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए और डैमेज नहीं होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए। ऐसे ही सीड्स हमें सेलेक्ट करने हैं। तो उस दिन भी हमें एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक्टिविटी। जो ख़राब सीड है वो पानी के ऊपर तैरेंगे, अच्छे सीड्स पानी में डूबेंगे। सो सीड्स कैन बी सोन, मतलब ये जो है बोए जा सकते हैं सीड ड्रिल या मैनुअली, हाथ से भी फेंका जा सकता है या सीड ड्रिल से भी किया जा सकता है। द नेक्स्ट स्टेप इज वीडिंग। वीड्स आर unwanted plants that grown along with crops, and removal of weeds is known as weeding. Weeds can be removed either manually by using tools like khurpi or by using weedicides like 2,4-D. These are sprayed in the fields to kill the weeds. So weeding क्या है? जो भी हमें जो पौधे नहीं चाहिए, जंगली पौधे, इन सब पौधों को रिमूवल को, और जो भी फसल में ज़रूरी नहीं है, जो ये फसल को न्यूट्रिएंट्स नहीं, इनको ये लोग न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर ले, इनको दूर हटाने को हम लोग वीडिंग कहते हैं। इनको हाथ से भी किया जा सकता है, खुरपी से यूज़ करके, दैट इज़ सिकल, और एल्स बाय वीडीसाइड, मतलब केमिकल जो फर्टिलाइजर्स उगाने के लिए यूज़ होते हैं फर्टिलाइज़र, और मारने के लिए यूज़ होते हैं वीडीसाइड्स। सो उसमें एक एग्जांपल है 2,4-D, जिनको फील्ड में स्प्रे कर दिया जाता है ताकि कोई भी जंगली प्लांट ग्रो ना करे और न्यूट्रिएंट्स ना ले सके। लास्टली इट इज़ थ्रेशिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रीन्स फ्रॉम द शाफ is called threshing. This is carried out with the help of machine called combine, which is in fact a combine harvester and thresher. तो दानों को अलग करना पौधों से, जैसे वीट है तो वीट के प्लांट को अलग करना है, दाने अलग करने हैं, ग्रेन्स को। तो इस प्रोसेस को हम लोग थ्रेशिंग कहते हैं। हाथ से भी किया जाता है, विनोइंग एज वेल एज बीटिंग से भी किया जाता है, बट इसको इजी करने के लिए हम एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं, कंबाइन, जो एक हार्वेस्टर भी होता है और थ्रेशर भी होता है। नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। फर्टिलाइज़र और मैन्योर में क्या फ़र्क है, हमने ये पढ़ा हुआ है। सो मेन डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर एज फेलोस। आपको ऐसा ही टेबल बना के या फिर आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। फर्टिलाइज़र क्या है? सबसे पहले इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, केमिकल है। और जो मैन्योर है वो खाद्य पदार्थ है, गोबर एंड एनिमल वेस्ट से ही बनाया जाता है। सो फर्टिलाइज़र इज़ एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, मैन्योर इज़ ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यू। पहला फ़र्क तो समझ में आया। दूसरा वाला, फर्टिलाइजर इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। ये घर में हम नहीं बना सकते, इसे फैक्ट्री में बनाया जाता है। बट मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स, खेती वाली जगह पे ही बनाया जाता है, जैसे गाय का गोबर, भैंस का गोबर एंड मरे हुए पौधे, इन सब से भी मैन्योर बनाया जा सकता है। अब फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइज़र जो है ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा नहीं, वो एकदम सॉलिड फॉर्म में ही होता है, पाउडर्ड होता है। मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योर दे सकते हैं क्योंकि मैन्योर में अपने आप एक मॉइस्चर रहता ही रहता है। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। सो फर्टिलाइज़र में हम जिस तरीके का केमिकल बनाएंगे वो उसमें रिच ही होगा। NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, ये तीनों उसमें रहते ही रहते हैं। मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। खाद्य पदार्थ जो है, जो हम लोग गोबर से बना रहे हैं, वो लेस होते हैं, मतलब कम होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इरिगेशन? डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। तो इरिगेशन मतलब लास्ट में हमने सॉइल रिपेयर की, सोइंग कर दी, तो इरिगेशन मतलब पानी देना। सो द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। पानी देना समय समय पे फसल को, उसे हम इरिगेशन कहते हैं। 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर आर एज फॉलोज। 2 मेथड्स हमने पढ़े ही थे, एक तो स्प्रिंकलर था, एक ड्रिप इरिगेशन था। सो द 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर आर एज फॉलोज। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज स्प्रिंकलर सिस्टम।
Under this method, the perpendicular pipes having rotating nozzles on top are joined to the main pipeline at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. तो आपने देखा ही होगा बगीचों में एक रोटेटिंग नॉब होता है, वो घूम घूम के हर जगह पे पानी देता रहता है, कई बार आप पे भी आ जाता है। तो ये ऐसा लगता है कि बारिश हो रही है, जैसे हम लोग सुबह सुबह शावर लेते हैं, स्प्रिंकलर भी सेम टू सेम वैसा ही होता है। Next is drip system. In this system, the water falls drop by drop just at the position of the roots. It is the best technique for watering fruit plants, gardens and trees. Water is not wasted at all. It is boon in regions where availability of water is poor. तो ये पानी क्या है, ये बूंद बूंद करके, जैसे नल क्या कई बार पानी कम होने पे ड्रॉप ड्रॉप करके आता है, वैसे ही हर रूट के सॉकेट्स पे इसको दिया जाता है जॉइंट। तो जस्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप रूट के ऊपर पानी गिरता रहेगा, और ये बेस्ट है फलों के लिए, पेड़ों के लिए और गार्डन जहाँ पे भी हमने रखा हुआ है। इसमें पानी ज़रा सा भी वेस्ट नहीं होता है, कहीं पे भी बहेगा नहीं, क्योंकि पानी दे ही हम कम रहे और जो कम देंगे वो सोख लिया जाएगा। सो ये इन रीजन्स में किया जाता है जहाँ पे पानी प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलता, खासकर डेजर्ट्स में। Now question 7, if wheat is sown in the kharif season, what would happen? Discuss. Wheat is a rabi crop. हम सबको मालूम है ये एक rabi crop है, इसको ठंडी चीज़ों की ज़रूरत होती है। So hence it requires cold climatic conditions to be grown properly. If it is sown in kharif season, it will not grow or may get destroyed due to excessive rains in the kharif season. Kharif season में मानसून होता है, बारिश ज़्यादा होती है। तो अगर हमने इसको खरीफ के सीज़न में बो दिया तो बारिश के कारण या तो फिर ये ठीक से ग्रो नहीं करेंगे या फिर डैमेज होंगे, जो हमारी फसल के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए वीट को हम लोगों को राबी के सीज़न में ही ग्रो करना चाहिए, कोल्ड में ही। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन दी फील्ड। तो सॉइल कैसे अफेक्ट होता है, हम बार बार खेती करते हैं, बार बार पौधे उगाएंगे, हर बार थोड़ी ना पौधे उगेंगे। जब उसमें न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे तो पौधे नहीं उगेंगे। तो कितना अफेक्ट होता है ये देखते हैं। Soil supplies mineral nutrients to the crop. These nutrients are essential for the growth of the plants. Continuous growing of crops in the same field makes the soil poorer in certain nutrients. This makes the soil infertile. And then to replenish the soil with nutrients, farmer need to add manure to the soil. तो जैसे हम आज खाना खा रहे हैं तो इससे हम 10 दिन थोड़ी ना चल सकते हैं। आज खा रहे हैं, आज का काम हो गया, कल दोबारा हमें भूख लगेगी तो हम दोबारा खाना खाते हैं। ऐसे ही सॉइल में बार बार जब फसल उगाई जाती है तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब सॉइल में तो रहेगा नहीं, थोड़े दिनों के बाद जो सॉइल है इनफर्टाइल हो जाएगी, मतलब खेती उसमें नहीं की जा पाएगी। बैरन भी कहा जाता है, ठीक है, ऐसे लैंड्स को। तो इसको हम ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें फिर हम मैन्योर डालते हैं या फर्टिलाइज़र डालते हैं ताकि ये फसल को बराबर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स दे सके। सॉइल नहीं बढ़ेगा बट पौधे के ग्रोने के लिए पौधे में सफिशिएंट पोषण की मात्रा होनी ज़रूरत है। नाउ द क्वेश्चन 9 इज़ व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। तो वीड क्या है और हम इसे कैसे बच सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। द अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप्स आर कॉल्ड वीड्स। देयर आर मेनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। Weeds can be removed by uprooting or cutting them close to the ground from time to time. This is done with the help of a khurpi. Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides like 2,4-D. These are sprayed in the fields to kill the weeds. जैसे इंसेक्ट को मारने के लिए हम इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, वैसे ही वीड्स को मारने के लिए हम वीडिसाइड यूज़ करेंगे। वीड है क्या, ये अनवांटेड प्लांट्स हैं जो एक फसल के साथ उग जाते हैं। तो इसे डेली हम हाथ से भी काट सकते हैं, खुरपी से यूज़ करके टाइम टू टाइम जाएंगे और अनवांटेड प्लांट्स को डेली का डेली रिमूव करेंगे। बट इसमें हमारी मेहनत और एफर्ट लगती है। इससे अगर हमें सेफ बचना है तो हम इसमें केमिकल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ वीडिसाइड्स। एग्जाम्पल के लिए 2,4-D। ओके, सो इसको हम लोग फील्ड में स्प्रे कर देते हैं ताकि कोई भी अनवांटेड प्लांट, मतलब जो प्लांट हमें नहीं चाहिए, वो ग्रो ना करे।
Now in question 10 they have given you some boxes. Arrange the following boxes in proper order to make a flow chart of sugarcane crop production. हमें इसे ऐसे अरेंज करना है ताकि ये sugarcane के crop production जैसा लगे. तो इसमें दिया हुआ है सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री फर्स्ट में, इरिगेशन सेकेंड, हार्वेस्टिंग थर्ड, सोइंग फोर्थ, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल 5, प्लोइंग द फील्ड 6 एंड 7 इज मैन्योरिंग. तो सबसे पहले हमें खेती करने के पहले क्या करना पड़ता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. पहले हमें मिट्टी को बराबर करना पड़ता है. सो फर्स्ट स्टेप विल बी द फिफ्थ वन. अगला स्टेप होता है प्लॉ करना, मतलब उसको लूजन अप करना. ठीक है, टिलिंग करना, लूजन करना और ऊपर की और नीचे की परत को सॉइल की मिक्स करना. अगला स्टेप है फोर्थ. ओके, दैट इज सोइंग. सीड बोएंगे. एक बार मिक्स हो गया सॉइल तो उसके बाद हम उसमें सोइंग करेंगे. नेक्स्ट स्टेप विल बी मैन्योरिंग, मतलब उसमें खाद पदार्थ भी ऐड करना ताकि सीड को बराबर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिल सके, पोषण तत्व मिले. अगला स्टेप इसमें पानी देना. ओके, अब बीज बो दिए, फर्टिलाइज़र डाल दिया, अब पानी देंगे, इरिगेशन. और इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा हार्वेस्टिंग, मतलब इसमें से फसल को निकालना. जब उग जाएंगे, बड़े हो गए, उसके बाद हम इसे हार्वेस्ट करेंगे एंड देन फाइनली ये फसल को हम फैक्ट्री में भेजेंगे. फसल बनेगी तभी भेजेंगे ना, बने बगैर नहीं कर सकते. तो हार्वेस्ट हो गया, उसके बाद सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री. The next question is complete the following word puzzle with the help of the clues given below. तो आपको क्ल्यू दिए गए हैं, आपको ये पजल कंप्लीट करना है. तो आप पहला है डाउन, प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स. हम पानी देते हैं क्रॉप्स को, इसको हम क्या कहते हैं साइंटिफिकली? इरिगेशन. सो पहला रहेगा इरिगेशन. कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशंस, मतलब जो भी फसल उग गई है हार्वेस्ट करने के बाद हम उसे कैन में डालते हैं या रूम में प्रॉपरली रखते हैं. इसको हम क्या कहते हैं? स्टोरेज. इसको हमें संभाल के रखना, तो उसे स्टोरेज के डिपार्टमेंट में. सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्जर स्केल. ये हमने बार बार पढ़ा. सेम प्लांट, सेम टू सेम प्लांट होंगे, वीट के ही डिफरेंट तरीके के प्लांट, उसे अगर सेम ज़्यादा अमाउंट में ग्रो किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रॉप. नेक्स्ट विल बी सीइंग द एक्रोस, अ मशीन यूज्ड फॉर कटिंग दी मैच्योर क्रॉप. जब फसल बन जाती है उसे कट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उस मशीन का नाम है या तो फिर हम कंबाइन या फिर दूसरा नाम है हार्वेस्टर. वो आपको लिखना है. अ राबी क्रॉप दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ दी पल्सेस. एक राबी क्रॉप जी से स्टार्ट हो रहा है, तो राबी क्रॉप है वो है ग्राम. ओके, अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम शाफ. शाफ से हमें सिर्फ वो ग्रेन पार्टिकल्स को अलग करना है, उसको हम लोग कहेंगे विनोइंग. सो ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर्स आर completed. So you can note it down in your notebook and submit me when the school reopens. Thank you kids again.